Jai Hind students, this is Sachin Deman from Gyanasthali Public School. And students, today I will teach you chapter 1, and this is the first lecture of class 6 maths. And first of all, we will study recap exercise. So question number 1 of recap exercise is, write the largest and smallest 4-digit number using digits 3, 1, 5, 4 without repetition. मीन्स विदाउट रिपीटिशन, इनको रिपीट नहीं करना है और 4 डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म करना है दैट शुड बी लार्जेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स. सो रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन मीन्स इनको फिर एक बार अगर किसी डिजिट को हमने लिख दिया है तो उसको फिर से नहीं लिखना है. सो largest number that can be formed will be, so we have to remember that in largest number firstly we should write the greatest digit. So 3, 1, 5, 4 में greatest digit है 5, so we will write 5. so 5 जैसे लिख दिया है तो 5 को फिर से नहीं लिखना है, विदाउट रिपीटिशन है ये. so 5, 4 और 4 भी लिख दिया है तो 3 और 1 are remaining digits. so after that 3 and 1. so we will put the comma after 3 digits according to Indian system of numeration. so this is the largest number, 5431, and the smallest number will be, so in the smallest number we will write the digit which is the smallest digit in 3, 1, 5 and 4. so 1 is the smallest digit here, 1, after that 3, 4, 5. so smallest number that we can write using these digits will be 1345. so we should remember that in smallest number we have to write smallest digit first, and in largest number we should write the largest digit first. Okay. Now question number 2, write place value and face value of color digit. Color digit is 4, which I have done underline here. so we have to write simply the place value of 4 here. so place value of 4 is equal, so place value कैसे लिखते हैं, जैसे 4, so we will write 4, after that we will count that how many digits are after 4. so 1, 2, 3 and 4, so 4 digits are after 4, so we will put 40, not the digits, 40 here, and 1, 2, 3, after 3 digits we will put comma. so this will be the place value of this color digit, that is 4. so what is the place value of 4? Here the place value of 4 is 40,000. okay. Now question number 3 will be, find the difference. Difference means we have to subtract the smallest value from the small value from the larger value. This is the difference. This so find the difference between largest and smallest 6-digit number. so 6-digit number that should be the largest. so firstly we should know that what will be the largest 6-digit number. so we will write largest 6-digit number. so largest 6-digit number will be, we will write 6 times 9. okay, क्योंकि जो 9 होता है that is the largest digit. okay, because we have 10 digits. what is 10? what are these? These are 0, 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. so which is the largest digit? We have the largest digit 9. so if we are going to write 6-digit number that should be largest, we will write 6 times 9. so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. this is the largest digit of
This is the largest number of 6 digit. Okay. Now smallest 6 digit number. So our smallest 6 digit number is what is our smallest digit? Our smallest digit is 0. बट अगर हम 0 को स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो अगर मैंने इस तरह से लिख दिया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू 0. सो ये डिजिट जो है 3 डिजिट नहीं रह पाती है ना. सो फर्स्टली इनको सिग्निफिकेंट नंबर बनाने के लिए वी विल राइट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर हियर 1. आफ्टर दैट वी कैन राइट 0. नाउ इट विल बी सिग्निफिकेंट नंबर. अब इसको हम 0 नहीं कर सकते हैं, ना ही 1. ओके, दिस इज द 1 2 3 4 5 6. तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज this and 6 digit largest number is this. So what we have to do, we have to find the difference between these two numbers. So for the difference we will subtract smaller value from the greater value. So 9 minus 0 9, 9 9 9 9 and 9 minus 1 8. So this is the difference, this is the required difference here. So students, question number 4 is arrange the following in ascending order. So what is ascending order? So ascending order is small to big. So we have to write smallest number first, after that greater. So these numbers, this is the smallest one. So स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेमीकोलन वाला मार्क होता है, ये नंबर को सेपरेट करता है, ये कॉमन नंबर को सेपरेट नहीं कर रहा है, मीन्स ये कंप्लीट एक नंबर है एंड दिस इज कंप्लीट नंबर. ये 45 एंड 059 आर नॉट द डिफरेंट नंबर्स, दिस इज द सेम नंबर 45,000. ओके, सो फर्स्टली हम इसमें डिजिट्स काउंट करते हैं कि किसी नंबर में कितने डिजिट हैं. सिंपल मेथड सबसे यही होता है. सो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है. 1 2 3 4 डिजिट है और यहाँ पे 5 और 5 डिजिट है. सो जो 4 डिजिट का जो नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो 5 डिजिट के नंबर से लेस होता है. सो फर्स्टली दीज टू नंबर्स आर लेस देन दीज 3 नंबर्स. सो इनमें हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट, फिर हम देखते हैं. सो 3 and 4. सो 3 और 4 में कौन सा नंबर स्मॉल है? ऑब्वियसली 3 नंबर इज स्मॉलेस्ट देन 4. सो फर्स्टली दिस विल बी द फर्स्ट नंबर एंड दिस विल बी द सेकंड नंबर. Okay, after that we will compare these 3 numbers. So all these 3 numbers have 5 digits. So firstly we will compare the first digit of these numbers. So this will be the 3, this is the 3 4 and 4. So 3 is small and 4 and 4 are equal. So equal जो है उनको बाद में देखते हैं, पहले small number. So this will be the third number in ascending order. After that 4 4. So 4 तो equal है, हम यहाँ पे compare कैसे करें? ये इक्वल है, सो कैसे बताए कौन सा स्मॉल है इनमें? सो स्मॉल विल बी, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हम देखते हैं. तो 4 5 4 5, उसके आगे चलते रहिए जब तक कि हमें डिजिट डिफरेंट ना मिल जाए. सो 0 1, वी हैव गॉट द डिफरेंट डिजिट है. सो 0 and 1 which is small 0. So this will be the fourth number and this will be the second number. Now we will write in ascending order. So ascending order will be first number is 3875. Number second we will write number 3, number 4 and number 5. Okay, so students, remember this point. We have to separate ascending order using semicolon, or we can also put the less than mark.
So this is the ascending order. Question number 6. Write in expanded form. So we have to write this number. So what is expanded form? तो expanded form करने के लिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जो डिजिट होती है किसी नंबर में वहाँ से स्टार्ट करके ईच एंड एवरी डिजिट तो हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं. सो 4 की प्लेस वैल्यू सबसे पहले हमें लिखनी है. सो प्लेस वैल्यू 4 इज 4 और डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है 50. ओके. आफ्टर दैट प्लस साइन लगा देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. आफ्टर दैट 3 डिजिट है. सो 3 और फिर डिजिट काउंट करते हैं. 3 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4. तो 40 प्लस 0. तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है. उस एडिशन में 0 तो जो है रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं होता वहाँ पे. सो 0 की प्लेस वैल्यू वी कैन स्किप देयर. आफ्टर दैट 9 की प्लेस वैल्यू होती है 9 के आगे 2 डिजिट है. सो 2 0 प्लस 4 के आगे 1 ही डिजिट है. सो 1 0 प्लस 5. सो 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है. सो ओनली 5 वी विल राइट. प्लेस वैल्यू 5 इज 5. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट नंबर. सो स्टैंडर्ड फॉर्म करने की मैं आपको एक मेथड सिंपली बताता हूँ कि इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें. ओके. सो द सम विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. ऐड कर दीजिए. जो सम होगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. एंड नंबर सेकंड मेथड, अगर हम इसमें सम नहीं करना चाहते हैं, अगर सम नहीं करना चाहते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट लिख लीजिए. किसी नंबर में कितने डिजिट्स हैं. सो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं. 4 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं और 1 डिजिट है. सो इसको हम ग्रेटर जिसमें ज़्यादा डिजिट होती हैं उसको पहले लिख देते हैं और केवल उस डिजिट को लिखते हैं जो नॉन जीरो डिजिट है, मीन्स जीरो नहीं है. तो 7. फिर नंबर 5 पे इस तरह से. नंबर 5 पे कौन है? 6 पे तो 7 है. तो नंबर 5 वाला नंबर कौन सा है? उसकी डिजिट क्या है? फर्स्ट 4. सो 4 एंड 5 के आगे फिर 4 वाला. सो 5 एंड फिर 3 वाला. तो 3 डिजिट तो किसी नंबर में नहीं है. सो नहीं है तो वी विल राइट 0. आफ्टर दैट 2 में है 8 एंड आफ्टर दैट 9. सो 3 के बाद एक कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो है ना, इस तरह की फॉर्म है ये यहाँ पे. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एड 46,342 and 9,84,345 and write sum in words. मीन्स ऐड करना है इन दोनों नंबर को और जो सम आता है, जो आंसर होगा उसको वर्ड्स में लिखना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. 46,342. नाउ 9. सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, राइट साइड में जो डिजिट है ये यहाँ पे होनी चाहिए. आप राइट साइड से भी स्टार्ट करके इसको लिख सकते हैं और 1 डिजिट के बिलो 1 ही डिजिट होनी चाहिए. सो 4 8 एंड 9. इधर से भले ये इक्वल ना हो. सो ऐड नाउ. सो 5 plus 2 7, 4 plus 4 8, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. This will be the carry 1. 4 and 1 5, 5 and 8 13. Carry 1 again. 9 plus 1 is 10. So 10 is 0 and 1. So students, we have to write this number in words. So in words that will be
देखिए आफ्टर 3 डिजिट वी विल राइट 1 कॉमा, आफ्टर 2 डिजिट अनदर कॉमा, आफ्टर ओके। अगर यहाँ पे भी डिजिट होती तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते। सो ये होता है हमारा, क्या होता है, वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, 10,000 मीन्स ये कंप्लीट 1000 है, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो हमारे पास 10 लाख यहाँ पे है। तो कंप्लीट ना ग्रुप को मिला के इस तरह से बोलते हैं, जैसे 1 0 क्या होता है, 10 होता है। सो दिस इज 10 एंड लैक्स, 10 लैक्स, और ये 1000 वाला ग्रुप है। सो दिस इज, और इस ग्रुप में क्या है, 30 है, 3 0, व्हाट इज 3 0, 3 0 इज 30। सो 30 thousands, and this is 100, tens and ones. So 100 is 6 hundreds. This is 8 7, 8 tens and 7 ones क्या होता है, 87, 87. So students, this is in words. Simply we can write in this in words. Now your question number 10 is सब्ट्रैक्ट करना है उसमें नंबर्स को, और जो आंसर आता है उसको हम वर्ड्स में लिखना है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। सो अंडरस्टैंड, ओके।